Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today topic you will study about the compounds of halogens in detail. So let's see our topic. First of all, we will see the hydrides. That is the compound of halogen, and the hydride halides are also known as in the form of HX. All halogen have a property to react with hydrogen. As a result, they will form hydride. It means that in the formula of HX, there are simply two important things. One is hydrogen and other is halogen. When both these two elements will react with each other, they will form hydride. So first we will see how they are prepared. The preparation of halogen will involve the reaction of molecular hydrogen with molecular fluorine. It means the hydrogen and fluorine both are exist in the diatomic state. As a result, when both will react with each other, the reaction is very fast and explosion will be occur. So this reaction should be controlled. As a result, the formation of HF will be take place. In the same way, the same reaction will also proceed with chlorine. As a result, the HCl will be produced, but the property of this reaction that this reaction should be take place in the presence of sunlight. If sunlight is absent, then the reaction will not take place because chlorine and its related compound reaction are always take place in the presence of sunlight. In another hydride of halogen, that is the hydrogen bromide, will also produce when hydrogen and bromine both will react at a higher temperature. It means that from this you can see the reactivity of these halogen, that fluorine is highly reactive substance because the reaction will result in the formation of an explosion, while chlorine reaction will require sunlight, while bromine reaction will require a higher temperature, while the reaction of iodine is very slow and this reaction is reversible, and the formation of hydrogen iodide will be reversed at uh, temperature which is required for the formation of HI. Now these are the simplest reaction which is known as the direct combination. It means that in this reaction you can see the direct combination of hydrogen and halogen which result in the formation of hydrogen halide. But in this reaction, in this slide you can see that the direct combination is used as a preparative method only for HCl and HBr. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो हम डायरेक्ट कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं वो HF और HI के लिए क्यों नहीं कर रहे, कि हम सिर्फ यही क्यों कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट कम्बिनेशन। अब याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट कम्बिनेशन इनकी बात हो रही है कि इनको हम डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। वो कहते हैं ये रिएक्शन हम नहीं करवाते क्योंकि उसकी रीजन ये है कि रिएक्शन इंतहाई स्लो होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो वापस अपने रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वाइल अगर आप फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन देखेंगे तो इनका रिएक्शन एक्सप्लोजन की तरह का होता है, यानी इस दौरान जो है वो धमाका हो सकता है इस रिएक्शन के नतीजे में। तो इसलिए ये दोनों रिएक्शन को हम डायरेक्ट रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्ट कम्बिनेशन सिर्फ ये HCl के लिए और HBr के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद वो बता रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर करने का एक और तरीका ये है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड यानी फॉर एग्जांपल अगर आप HCl को तैयार करना चाहते हैं तो HCl की तैयारी या HF की तैयारी दोनों इसी प्रोसेस से होगी। यानी सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर रिएक्ट करता है तो इससे सोडियम सल्फेट एज वेल एज हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। अब वो कहते हैं कि यही रिएक्शन आपका, यानी अगर आप 2NaCl के बजाय यहाँ 2NaF लिख लें और आगे सेम यही करें तो यहाँ पर HCl के बजाय सिर्फ क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा। तो कहते हैं HF और HCl की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के थ्रू होगी। while the reaction with sodium bromide and sodium iodide and in the presence of concentrated sulfuric acid the product will be changed, कि इसके प्रोडक्ट से डिफरेंट होंगे। उसकी रीजन क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन के मुकाबले में रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, तो इनके प्रोडक्ट भी चेंज होंगे। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन के रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगी। किसकी, इन हाइड्रोजन के हेलाइड्स की। यानी अगर ये हम ये कहते हैं यहाँ पे HBr बन रहा है तो HBr फौरी से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे
फ्री हेलोजन की प्रोडक्शन करेगा। इट मीन यहाँ पे जो रिएक्शन है NaBr के साथ बच्चों आप लिख लें, यहाँ पे रिएक्शन जो आपको नजर आ रहा है यही सेम रिएक्शन आप 2NaI यानी सोडियम आयोडाइड करके लिख सकते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सेम यही प्रोडक्ट बनेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपने क्या करना होगा, ब्रोमीन की जगह पे इधर आयोडीन लिखना होगा। तो कहते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए ये वाली इक्वेशन फॉलो होगी, वाइल दी ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ये वाली इक्वेशन फॉलो होगी। अब उसकी रीजन उन्होंने क्या दी है आपको टेक्स्ट बुक में कि उन्होंने जस्ट आपको एक एक इक्वेशन दे दी है, तो आप लोगों ने इस एक इक्वेशन को जहन में रखना है कि इसी तरीके से हम इनको भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो इसके नतीजे में जो आपके पास हेलोजन प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी अ फ्री हेलोजन। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स के ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको हम HF का नाम देते हैं ये एक कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है कि अगर आप इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये जो है वो वेपोरेट हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है। जबकि जो दूसरे हाइड्रोजन हेलाइड्स होते हैं ये ज्यादातर गैसियस स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। और अगर आप इन हाइड्रोजन हेलाइड्स की बात करें तो ये सारे के सारे फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं मॉइस्ट एयर में एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इरिटेंट। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट, यानी ये जो है वो गले में खराश का सबब बनते हैं। इसी तरह अगर आप आगे देखें बच्चों तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये क्या कर सकता है, ये शीशे पर अटैक कर सकता है। अब यहाँ देखें ये ग्लास के ऊपर अटैक हुआ है जिसकी वजह से ये जो ग्लास है ये डैमेज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HF। इसलिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को कभी भी शीशे की बोतल में स्टोर नहीं करते। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनको फिर किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो ये इस तरह के नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं जिनको हम टेफ्लॉन का नाम देते हैं। टेफ्लॉन क्या चीज है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक पॉलीमर है जो कि अगर आप एब्सोल्युटली ड्राई रखें और उसके बाद हम इनके अंदर इन कंटेनर के अंदर जो है वो इसको स्टोर करते हैं, या फिर आप स्टेनलेस स्टील के अंदर भी इसको रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन जो है वो क्या होगी, वैक्यूम होगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्योर लिक्विड होता है HF का वो एक स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है एंड इट इज अ विस्कस लिक्विड होता है। और विस्कोसिटी अगर आप इन दोनों की कंपेयर करें तो HF की विस्कोसिटी वाटर के मुकाबले में कम होती है। उसकी रीजन क्या है कि वाटर के अंदर 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि वाटर में ये वाली 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। Bonding is also responsible for the association of HF molecule in the vapor phase। यानी ये जो HF के मॉलिक्यूल हैं ये वेपर फेज में कंबाइन हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ देखें ये HF का एक मॉलिक्यूल है, जब इस तरह के 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो इससे साइक्लिक हेक्सामर फॉर्म होता है। अब ये जो है वो स्ट्रक्चर है साइक्लिक हेक्सामर की, जिसमें HF के 1 2 3 4 5 एंड 6 मॉलिक्यूल हैं जो कि कंबाइन होकर उन्होंने इस तरह से ये हेक्सामर फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से इस तरह से इसका साइक्लिक हेक्सामर बन जाता है और इसमें एक सिंगल HF का मॉलिक्यूल 6 HF के साथ साइक्लिक हेक्सामर की फॉर्म में ये अरेंज होके, चाहे ये स्ट्रक्चर इस तरह से रिंग फॉर्म में बना ले या सिंपल हेक्सामर की फॉर्म में बना ले, तो ये वेपर फेज में ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट ये है कि HF के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है while fluorine will carry a partial negative charge. As a result, the positive and the negative end will attract the opposite pole of the element. For example, hydrogen will carry a partial positive while hydrogen fluorine will carry a partial negative. So the dotted line will indicate the hydrogen bonding exists between these atoms. Now, various test results indicate that gaseous HF consists of an equilibrium mixture of monomer and cyclic hexamer। यानी ये इसकी बात कर रहे हैं, ये सिंपल अगर H एक होगा HF का तो उसको मोनोमर बोलेंगे बच्चों। मोनो का मतलब होता है 1 और साइक्लिक हेक्सामर का मतलब होता है कि 6। तो कहते हैं कि ये इंडिकेट हुआ कि वेरियस टेस्ट से कि जो HF मॉलिक्यूल जो गैसियस स्टेट में होता है वो इन दोनों का इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, एक सिंगल HF का और 6 HF के मॉलिक्यूल का। और ये जो पॉलीमर है ये एग्जिस्ट करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस में। चेन एंड द रिंग ऑफ HF आर ऑफ आल्सो वेरियस साइजेस, सम ऑफ दीज परसिस्ट इन द वेपर एज वेल। और प्रॉपर्टीज के लिए बच्चों आप बुक से देख लीजिएगा, वो जनरल प्रॉपर्टीज हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो ये हेक्सामर बनाने से पहले का रिंग है और ये हेक्सामर बनने के बाद इनका रिंग है।
इसके बाद बच्चों आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन हेलाइड्स की, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर आप इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये जनरली इंक्रीज होते हैं रेगुलरली फ्रॉम HCl टू HI तक। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो इन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ फ्यूजन होती है बच्चों वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है जो कि ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी भी लिक्विड को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये कहते हैं इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज रेगुलरली इंक्रीज होती हैं फ्रॉम HCl टू HI तक। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप जाएं तो टॉप टू बॉटम जो है वो वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये जो दीगर हीट्स की वैल्यूज हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद HF की अगर हम बात करें तो ये जो है वो इसकी वैल्यू इन तमाम के मुकाबले में, क्योंकि हमने यहाँ देखा ये जो ट्रेंड है वो HCl टू HI तक था, HF से नहीं है। HF की रीजन ये है कि HF के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यूज होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है तो इससे इनकी ये वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है कि अगर आप HF की बात करें तो हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन से और फिर HF से लेके HI तक अगर आप बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम जो है वो HF का होता है, जो कि मेजरली इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम है, जबकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इनका बॉन्ड क्या होगा, वीकेस्ट होगा। उसके बाद आगे वो बात कर रहे हैं कि ये सारे फैक्टर जो वोलेटिलिटी का अभी हमने बात की, जो पीछे हमने हीट ऑफ वेपराइजेशन की, हीट ऑफ फ्यूजन की बात की, इन सब के साथ हमें ये इंडिकेट होता है कि HCl से HI तक की वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज होती है। इसका ये मतलब होता है कि इन मॉलिक्यूल के अंदर वंडरवॉल फोर्सेज है। आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो हेलोजेंस का साइज इंक्रीज हो जाता है, और हेलोजेंस का साइज इंक्रीज होने से इनमें वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती हैं। तो जैसे ही किसी कंपाउंड में वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होती हैं तो इट मीन उसके अंदर होती हैं, इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है, इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होती है। तो जब इन्हीं कंपाउंड का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनता है तो यही सेम फिनोमिना इनके अंदर एग्जिस्ट करता है कि फ्रॉम HCl टू HI तक तो ये रेगुलर इंक्रीज होगी, बट HF के साथ इनकी एक्स्ट्रा वैल्यू एसोसिएटेड होती है ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों इसी चीज के ऊपर जो है वो हम इनकी एसिडिटी को भी डिस्कस करेंगे अभी लेटर ऑन। इसके बाद आता है बच्चों कि अगर आप डायपोल मूवमेंट करें तो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू भी HCl से HI तक डिक्रीज होती है। यानी मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जो कि किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी को, पोलर मॉलिक्यूल होने को इंडिकेट करता है। तो HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा आता है, तो इसलिए कंपाउंड पोलर है, जबकि HI के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है तो इसलिए इतना ज्यादा पोलर नहीं है। तो डायपोल मूवमेंट जो ये टर्म है, दैट इज द डायपोल मूवमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी मॉलिक्यूल के पोलर होने को ये इंडिकेट करती है। तो पोलैरिटी जो है वो इंडिकेट करती है कि HCl का मॉलिक्यूल इंतहाई पोलर है, और ये पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम HI तक जाते हैं। और इसी वजह से डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस भी इन मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग, ये जो एक मॉलिक्यूल है और इसी तरह ये सेल दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये इनके अंदर जो हैवियर मॉलिक्यूल हैं ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद बच्चों आता है कि अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन और हेलोजन के बॉन्ड की बात करें तो अभी हमने कहा कि इन सब में हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और HI का बॉन्ड क्या है जी, वीकेस्ट है। तो चूंकि HF का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है तो इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ द हेलोजन एटम। तो आपको ये क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप हेलोजन में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज बढ़ने से हाइड्रोजन आयोडाइड की जो बॉन्डिंग होती है वो वीक हो जाती है। उसकी रीजन क्या है, देखिए हाइड्रोजन का एटम एक छोटा सा है जबकि आयोडीन का एटम काफी लार्ज है। तो जब हाइड्रोजन का एटम जो ये इतना संभाला है इसके साथ जब आप इसको रखेंगे इधर, तो अब आप देखें इनकी पैकिंग इतने अच्छे से नहीं होगी जितनी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की होगी। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि इनका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। तो जब कोई बॉन्ड वीक होगा तो वो अपने अंदर से हाइड्रोजन को बहुत आसानी के साथ लूज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने देखा कि ये जो वैल्यूज होती हैं इनकी ये वैल्यूज डिक्रीज हो जाती हैं विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेलोजन एटम, एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज रिफ्लेक्टेड इन द केस ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। कि हाई टेम्परेचर अगर रिक्वायर्ड है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे कि HF के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड स्ट्रांग है। तो ऐसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसका हमें अंदाजा इनकी हीट ऑफ डिसोसिएशन से होता है। लेकिन HI
के लिए वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि अभी आपको बताया कि आयोडीन का साइज लार्ज होता है, तो उनके अंदर जो है वो बॉन्डिंग इतने अच्छे से, पैकिंग की वैल्यूज इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो HF के लिए वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आती हैं। इसके बाद बच्चों अगला फैक्टर आता है कि अगर आप इन तमाम हाइड्रोजन के हेलाइड्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देना। तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की वैल्यू आप जानते हैं कि फ्लोरीन के पास इतनी नहीं होगी HF के लिए, जबकि अगर आप, तो इसका हम जो ट्रेंड लिखते हैं, ये जो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड का जो ये जो सिंबल है, ये इंडिकेट करती है स्मॉलर होने को। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि HCl इससे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, HBr HCl से बेटर है, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा जी? HI। तो जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें हम हाइड्रोजन के हेलाइड्स को यूज कर सकते हैं विच आर यूज फॉर द ऑक्सीडेशन टू द अदर एलिमेंटल हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HI, क्योंकि हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर के साथ रिएक्ट करने पर ये जो आयोडीन है इसकी रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया, और गेन करके ये मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज I2 में कन्वर्ट हो गया, और ये हाइड्रोजन और ये सल्फर दोनों ने मिलकर क्या बना लिया है? हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन की है। तो अगर आप देखें वाटर के अंदर, तो जितने भी हाइड्रोजन हेलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआइडिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। HF जो है वो वीकेस्ट एसिड है। उसकी रीजन क्या है कि HF के अंदर आयनाइजेशन बहुत ही वीक होती है। उसकी रीजन अभी आपको बताई, क्योंकि HF का बॉन्ड जो है वो वैसे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकालना पसंद नहीं करता, तो हर वो कंपाउंड जो आसानी से पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करते, दे आर नोन एज दी वीकेस्ट एसिड। दैट्स व्हाई ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाई HF इज अ वीकेस्ट एसिड व्हाइल HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसकी रीजन आप ये बताएंगे कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड the bond between hydrogen and fluorine is strong due to the presence of hydrogen bonding। और उसके बाद बच्चों आपने इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना है। फिर आपने बताना है कि any strong acid has a property to donate its H positive ion easily, while in case of HF, the removal of, yeah, the ionization of H positive ion is very less due to the strong bond between hydrogen and fluorine. As a result, the tendency to lose proton from HF is weak. As a result, the HF will act as an वीक एसिड। ठीक है, तो एसिड एसिड की स्ट्रेंथ को भी फिर आप अरेंज कर सकते हैं कि HF अगर वीकेस्ट है तो बच्चों HI फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उसकी रीजन क्या है कि एक तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दूसरा आयोडीन का साइज काफी बड़ा है, तो वो उसके अंदर से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को लूज करना इसके लिए आसान हो जाएगा। तो चूंकि हर वो चीज जो आसानी से प्रोटॉन को लूज कर देगी, दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो हम ये कह सकते हैं कि HI एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जो है वो हमारे पास एक वीकेस्ट एसिड की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से तैयार कीजिएगा। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। के अगर आप हेलोजेंस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हेलोजेंस डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करें तो ये जो ऑक्साइड आपके सामने जो दिए गए हैं ये सब के सब पॉसिबल है। फ्लोरीन के बच्चों 3 ऑक्साइड हैं, दैट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसको हम O2F2 लिखते हैं। इसी तरह डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ट्राई ऑक्सीजन यानी O3F2 भी लिख सकते हैं आप इधर। ठीक है, क्लोरीन का होता है जी डाई क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन हेक्साऑक्साइड, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। इसी तरह बच्चों ब्रोमीन ऑक्साइड, ब्रोमीन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड, इसको हम Br O3 या इसका जो एक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज Br3O8, इसकी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आयोडीन का आता है दैट इज आयोडीन टेट्राऑक्साइड, आयोडीन आयोडेट है, और उसके बाद आता है आयोडीन पेंटा ऑक्साइड। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो हमारे पास ऑक्साइड है दैट इज ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसके स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखेंगे कि अगर आप इस ऑक्साइड को देखें तो इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, क्योंकि आप इसके स्ट्रक्चर में नोट करें दो चीजें हैं, वन इज ऑक्सीजन एंड अदर इज फ्लोरीन। तो जब आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो इससे आप ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन बच्चों मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताया कि इन्होंने ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके साथ जो है वो आपने क्या यूज करना है दैट इज फ्लोरीन। और जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मिलने से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, दैट इज ट्राई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड।
that is O3F2। ठीक है, तो बच्चों अब चूंकि आप यहाँ से देखें तो ये फार्मूला जो है वो हमारा बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ देखें अब यहाँ 3 2s आर 6, यानी ऑक्सीजन जो है वो तो 6 हो गए हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन 6 नहीं है, तो 6 करने के लिए हमें यहाँ भी 3 ही लिखना पड़ेगा। इन द सेम वे अब आप ऑक्सीजन को चेक करें, सॉरी फ्लोरीन को चेक करें, तो फ्लोरीन 2 2s आर 4 है, तो यहाँ पे आपको फ्लोरीन में इधर 2 का फिगर अगेन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखें कि इस तरह से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों मिलेंगे और इससे ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो अभी आपको मैंने रिएक्शन लिख के दिखाया। उसके बाद बच्चों कलर वेरिएशन अगर आप देखें इसकी, तो ये कंपाउंड जो है वो डार्क रेड कलर का विस्कस लिक्विड है, यानी जो ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है ये एट 360 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, डार्क रेड विस्कस लिक्विड होता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता रेडिश ब्राउन हो जाता है अगर आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें फ्रॉम 363 से 350 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद बच्चों अगर आप इसकी डीकम्पोजिशन देखें तो ये डीकम्पोज होकर अगेन इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दें जहां इसको आपने तैयार किया था, तो इसे अगेन आपको ऑक्सीजन और ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन हासिल होंगे। तो ये इनके स्ट्रक्चर है बच्चों OF2 का, और ये जो है वो O2F2 का। इन दोनों स्ट्रक्चर को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद बच्चों अगर आप देखें तो हमने अभी बात की कि ये डीकम्पोज होने पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद ऑक्सीजन का फ्लोराइड दैट इज O2F2 की प्रोडक्शन करेगा। इसी तरह इसका एक रिएक्शन और है कि O3F2 को आप रिएक्ट कर सकते हैं विद फ्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस O2 एंड F2। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक जो है वो हमारा टॉपिक ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन मुकम्मल होता है। उसके बाद आते हैं बच्चों ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो हम ये कहते हैं कि जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली अनस्टेबल, यानी ये स्टेबल नहीं होते। सेकंड क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट लाइक क्लोरीन एंड O2। जैसे आपने यहाँ देखा था कि आपने फ्लोरीन के ऑक्साइड को तैयार करने के लिए डायरेक्ट ऑक्सीजन और फ्लोरीन का रिएक्शन करवाया था, तो वो यहाँ बता रहे हैं आपको कि क्लोरीन के ऑक्साइड को तैयार करने के लिए क्लोरीन और ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट मेथड से तैयार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या है कि इनके ऑक्साइड जो क्लोरीन के होते हैं दे आर जनरली अनस्टेबल। उसके बाद बच्चों थर्ड वन प्रॉपर्टी आती है कि दे हैव एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल यूज एज कमर्शियल ब्लीचिंग एजेंट फॉर वुड्स, यानी इसको जो क्लोरीन है इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल ही क्या है कि ये ब्लीचिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल, चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो पेपर इंडस्ट्री के अंदर जब आप पेपर तैयार करते हैं तो उसके अंदर से कलर को रिमूव करने के लिए आप ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन को या ब्लीचिंग पाउडर को यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह जो पानी की ट्रीटमेंट के लिए जो अक्सर स्विमिंग पूल होते हैं उनके अंदर हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं ताकि वहाँ जितने भी जर्म्स वगैरह हैं उन सबकी डेथ हो जाए, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो आपको क्लोरीन की स्मेल अक्सर फील होती है। ठीक है, उसके बाद आता है जी इसका पहला ऑक्साइड है दैट इज नोन एज अ क्लोरीन डाई ऑक्साइड। तो जैसे आपको पहले बताया कि इसको हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से तैयार नहीं कर सकते, तो इसको तैयार करने के लिए हमें सोडियम क्लोरेट दैट इज NaClO3, इसका नेम क्या है, सोडियम क्लोरेट CHLORATE। ठीक है, और इसके साथ आप तैयार करेंगे। अगर आप ये वाला कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो इसमें से आपने सोडियम नहीं लिखा, सिर्फ क्लोरेट आयन के ऊपर जो वैलेंसी होती है। हाँ जी स्टूडेंट, तो हम ये देख रहे थे कि जब भी हम सोडियम क्लोरेट को हम यूज करेंगे तो सोडियम क्लोरेट के अंदर से हमारे पास जो आयन यूज होगा दैट इज योर ClO3 नेगेटिव आयन। इट मीन अगर हमारे पास ClO3 नेगेटिव आयन है जो कि इसका नेगेटिव पोर्शन है, तो इसी तरह सोडियम क्लोराइड के अंदर से Cl नेगेटिव, और जो एसिडिक मीडिया है तो एसिडिक मीडिया क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव आयन। तो इनकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो फाइनली इससे प्रोडक्शन होगी हमारे पास एक ऑक्साइड की दैट इज नोन एज द क्लोरीन डाइऑक्साइड, या जिसको हम क्या लिखते हैं ClO2 भी लिखते हैं। इसी तरह क्लोरीन गैस एज वेल एज वाटर की फॉर्मेशन टेक प्लेस होगी। तो इन सारी चीजों से हमें ये पता चला कि ClO2 को प्रिपेयर करने का एक वे क्या है कि फर्स्ट मेथड में आपने क्या करना है स्टेप में कि क्लोरीन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए एक रिएक्शन इसका सोडियम क्लोरेट के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड या एसिडिक मीडिया, और SO2 या मिथाइल अल्कोहल को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
और इस रिएक्शन के नतीजे में क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। सेकंड वन मेथड जो इसका है प्रिपेयर करने का, कि आप इसी तरह ही अगेन क्लोरेट को इस्तेमाल करें, लेकिन अब आप सोडियम क्लोरेट नहीं बल्कि आप पोटेशियम क्लोरेट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज दी KClO3। इसके साथ आपने एसिड यूज करना है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, और इसका फार्मूला होता है H2C2O4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो पोटेशियम सल्फेट से मिलके K2SO4 फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाएगी। इसी तरह ये कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और जो ClO3 में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी तो पीछे क्या बच जाएगा, ClO2 की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास दो मेथड थे स्टूडेंट क्लोरीन डाइऑक्साइड को तैयार करने के, जिसमें से फर्स्ट वन मेथड क्या है कि आप इसको यूज कर सकते हैं बाय द रिएक्शन विद सोडियम क्लोरेट, एंड द सेकंड वन मेथड विद पोटेशियम क्लोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड को बच्चों हम COOH ट्वाइस ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका दूसरा वे क्या है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज H2C2O4, ठीक है। दोनों मेथड जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड की। इसमें फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि ये एक पेल येलो कलर की गैस है, जैसे ये कलर आपको नजर आ रहा है ऐसी ये कलर की गैस होती है। ClO2 को जब आप एक्सप्लोड करते हैं तो ये धमाके के साथ फटती है, और गर्म करने पर ये क्लोरीन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। चूंकि ये वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए ये डार्क यानी अंधेरे में स्टेबल ही रहती है, यानी इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो वाटर में डिकम्पोज होती है, और HCl और क्लोरिक एसिड यानी HClO3 बच्चों किसका फार्मूला है, क्लोरिक एसिड का फार्मूला है। और ये जो है वो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि क्लोरीन है। तो याद रखिएगा कि क्लोरीन जब भी आएगी तो उसको हम हमेशा जरासीम को यानी एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए, एंड टू ब्लीच सेलुलोज मटेरियल, यानी जितने भी ये फाइबर वगैरह होते हैं उनके अंदर से स्टेन्स वगैरह को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन ऑक्साइड आता है क्लोरीन का, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, और इसका फार्मूला क्या है, दैट इज Cl2O7। और Cl2O7 जो है वो किसका एनहाइड्राइड है, दैट इज दी पर क्लोरिक एसिड। याद रखिएगा पहले पीछे जो है वो आपने क्लोरिक एसिड पढ़ा था, तो उसका फार्मूला क्या था, HClO सॉरी पोटेशियम क्लोरेट आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ जो एसिड आप यूज कर रहे हैं दैट इज, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, ये जो आपने नोट करना है ये क्या है, HClO4, इसे हम बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। अगर इसके अंदर से एक ऑक्सीजन आप कम कर देंगे तो इसका नेम सिंपल क्लोरिक एसिड होगा। अगर ये HClO4 है तो इसका नेम आपने याद करना है, पहले इसका नेम क्या है जी, पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से करें तो याद रखिएगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का रोल होता है एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें से आप एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, Cl2O7, जिसका नेम क्या है, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और इस कंपाउंड का नेम होता है मेटा फास्फोरिक एसिड। HPO3 को हम क्या बोलते हैं, मेटा फास्फोरिक एसिड। तो कहते हैं कि अगर आप इसको हासिल कर रहे हैं तो एट -10 डिग्री सेल्सियस पे ये जो पर क्लोरिक एसिड होता है इसकी डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि P2O5 इसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके साथ क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड एंड मेटा फास्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन आते हैं, दैट इज दी ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स, क्योंकि ब्रोमीन का अपना कलर डार्क रेड होता है, इन द सेम वे जो ब्रोमीन के ऑक्साइड होते हैं ये डार्क वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं विद लो थर्मल स्टेबिलिटी, यानी अगर आप इसको टेम्परेचर पे आम रूम टेम्परेचर पर रखें तो इसकी जो है वो ब्रेक डाउन फौरन हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादा देर अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता। तो इसको तैयार करने का हम पहले प्रेपरेशन इसकी देखते हैं। हर ऑक्साइड के अंदर बच्चों आपको पहले प्रेपरेशन तैयार करनी है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज तैयार करनी है, और अगर कहीं पर यूजेस मौजूद हैं तो वो भी आपने तैयार करना है, और साथ उनकी इक्वेशन को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो इसको तैयार करने का एक तरीका क्या है कि आपने मरकरी का ऑक्साइड लेना है, ये इसका नेम होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ मरकरी के ऊपर वैलेंसी क्या है, दैट इज +2। तो जब वैलेंसी +2 होती है तो मरकरी की एंडिंग IC यानी हायर वैलेंसी के लिए हम IC से करते हैं, और इसका नेम क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन जो है वो रिएक्ट करता है, और एट 50 डिग्री सेल्सियस पे ये कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरिक ब्रोमाइड में, AgBr2। इसका क्या नेम है, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड, और इसके साथ साथ ब्रोमीन मोनोऑक्साइड दैट इज Br2O की फॉर्मेशन होती है। तो एक तरीका आपने पहले याद करना है कि ये जो ब्रोमीन के ऑक्साइड होते हैं ये एक डार्क वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। सेकंड, आपने इनकी प्रिपरेशन तैयार करनी है कि आपने इसको तैयार करने के लिए ब्रोमीन को विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया था एट 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे मर्क्यूरिक ब्रोमाइड एंड ब्रोमीन ऑक्साइड या ब्रोमीन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि इसको तैयार करने के लिए आप ब्रोमीन के वेपर को डायरेक्टली मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं।
इसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट ऑक्साइड्स आते हैं, दैट इज दी ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं आयोडीन के, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन पेंटा ऑक्साइड इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके दो और भी कंपाउंड है जिसमें एक I2O4 है बच्चों, इसका नेम होता है आयोडीन टेट्रा ऑक्साइड। दूसरा तीसरा कंपाउंड है इसका I2O9, इसका नेम होता है आयोडीन आयोडेट। तो ये सारे के सारे साल्ट लाइक होते हैं और इनको हम आयोडीन के साल्ट या आयोडीन आयोडेट ही कंसिडर करते हैं। तो इन तीनों में से हम ज्यादा जो है वो आयोडीन पेंटा ऑक्साइड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आयोडीन पेंटा ऑक्साइड की बच्चों अगर आप प्रेपरेशन देखें तो इसकी प्रेपरेशन करने के लिए हम जो एसिड इस्तेमाल करते हैं दैट इज HiO3। इसका नेम क्या है? आयोडिक एसिड। इस एसिड का क्या नेम होता है बच्चों? आयोडिक एसिड होता है। और ये 240 डिग्री सेल्सियस पे जब डीकम्पोज होता है तो इससे आयोडीन पेंटा ऑक्साइड एज वेल एज वाटर की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं कि आयोडीन पेंटॉक्साइड एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये जो है वो स्टेबल होता है एट 300 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीमेरिक है। पॉलीमेरिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारे जो इसके यूनिट होते हैं वो कंबाइन होकर पॉलीमर की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होती, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन है, ईथर है, एथेनॉल है, मेथनॉल है, तो उसके अंदर ये सेल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर अगेन यानी आप इसी इक्वेशन को रिवर्स कर लो तो आपके पास यही आयोडिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो पहला रिएक्शन वही है जो आपने इसके प्रॉपर्टीज में भी यूज करना है और उसकी प्रेपरेशन में भी यूज करना है कि प्रेपरेशन करने के लिए आपने आयोडिक एसिड से स्टार्ट करना है। और जो इसका सेकंड वे क्या है कि प्रॉपर्टीज में ये जो आयोडीन पेंटाऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडिक एसिड में। उसके बाद बच्चों इसका थर्ड वन यूज आता है कि इसका रिएक्शन जो आयोडीन पेंटाऑक्साइड है इसको हम रिएक्ट करवा सकते हैं इन तीनों के साथ, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो कंपाउंड है दैट इज आयोडीन पेंटाऑक्साइड, इसको हम बड़े पैमाने पर यूज करते हैं फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन हो रही है और आयोडीन के वेपर्स जो हैं वो आपको वायलेट कलर के यहाँ पर फॉर्म होते हुए नजर आते हैं। तो इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड को हम यूज करते हैं बतौर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो बच्चों आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।